अपना कैमरा ऑन करो। तो 18 स्टूडेंट प्रेजेंट है। सभी अपना कैमरा ऑन करो बच्चों। कैमरा ऑन करो ना, तुम क्यों नहीं करते यार? वाइस चांसलर का ऑर्डर है, कैमरा ऑन रहना चाहिए क्लास के टाइम। जल्दी। तुम सब सोए हुए हो? कैमरा ऑन। रोल नंबर 27, रोल नंबर 36 कहाँ हो? ओके, यस सर। सभी कैमरा ऑन करो ना। रोल नंबर 31, रोल नंबर 14, 15, 33, 26, सभी कैमरा ऑन करो। 14, 15, 26, 25, 18, ये कौन है? रोल नंबर 26, कैमरा ऑन। रोल नंबर 14, तुम भी कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 26 कहाँ है? सो रही है। इल्हाम भी सो रही है। रोल नंबर 14। सर मेरा ऑन है। सर ऑन है कैमरा। अब इसका तो नहीं है रोल नंबर 26 का? सर मेरा भी ऑन है। यहाँ तो नहीं, अब हो गया। ओके, लेट मी स्टार्ट नाउ, जहां हम रुके थे इससे पहले। ओके, तो हमने क्या किया था? हमने ली थी एक कोशी सीक्वेंस xn plus y इनसाइड x by y। फिर मैंने कहा हम एक सब सीक्वेंस दिखाएंगे xni plus y, इसकी सब सीक्वेंस जो कन्वर्ज करेगी इनसाइड x by y। और चूंकि कोशी थी, मैंने ऐसे ये चूज की so that I can find yk belonging to xnk plus y such that norm of y1 minus y2 is less than equal to half norm of y2 minus y3। यहाँ तक हम पहुंच गए 1/2 स्क्वायर, एंड इस तरह से so on and so forth। यानी यानी y1 belongs to the coset xn plus, ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये कोशी सीक्वेंस थी, ओरिजिनल सीक्वेंस। मतलब इसी तरह से मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूँ जिसकी ये प्रॉपर्टी है, that is yk minus yk plus 1 is less than equal, नहीं, strictly less, sorry, strictly less than 1/2 raised to power k। Now ये जो ये सीक्वेंस है, it would be of this form, है ना? yk would be some xnk plus some y, है ना? y prime। Of course they all belong to x because ये x में है, ये x में है, सब कुछ x में ही है। So in this way ये जो yk है, ये जो yk मैंने बनाई ना, yk it is contained in x। Okay, अब अगर ये है, now if I evaluate if m is less than n, चलो दूसरे पेज पे जाते हैं, नहीं इसी को रब करते हैं, यहाँ पे नहीं रहने देते। If m is less than n, then norm of ym minus yn can be written as norm of ym minus ym plus 1 plus ym plus 1 minus ym plus 2 plus so on and so forth। अब देखो m is less than n, तो एक स्टेज पे ये पहुंचेगा n पे, यानी फिर आएगा लास्ट पे yn minus 1 minus yn। Because m is less than 1, जब मैं इसका इंडेक्स बढ़ाता जाऊंगा, इवेंचुअली ये n minus 1 तक पहुंचेगा एंड इवेंचुअली yn तक। Now this is less than equal to norm of, using triangle inequality, ym minus ym plus 1
plus ym plus 1 minus ym plus 2 plus so on and so forth, norm of yn minus 1 minus yn. Now using the fact that yk minus yk plus 1, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ and in which handle yk minus yk plus 1 is less than equal to 1 by 2k. What would be ym minus ym plus 1? So this would be less than 1 by 2 raised to power m plus, इसके बाद क्या आएगा? Now it is ym plus 1, so it should be less than 1 by 2 raised to power m plus 1, है ना? इसी तरह से so on and so forth, 1 by 2 raised to power n minus 1. ये है ना इसके साथ, यहाँ पर अगर k है और उससे बड़ा एक है यहाँ पे, then it is less than 1 by 2 raised to power k. So this would be यहाँ पर जो बैठा है, क्योंकि ये इससे एक बड़ा है, तो less than 2. So what I have got now is this. I have got for m less than n, norm of y, what was that? Ym minus yn was less than 1 by 2 raised to power m plus 1 by 2 raised to power m plus 1 plus so on and so forth plus 1 by 2 raised to power n minus 1. इसको मैं 2m कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है ना? अगर मैं इसको कॉमन निकालता हूँ 1 by 2 raised to power m, देखते हैं. This can be written as 1 by 2 raised to power m, अंदर बचेगा 1 plus 1 by 2, base are same, powers are added, plus 1 by 2 square. इसी तरह से जाते हुए अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना है. It would be 1 by 2 raised to power n minus n minus 1. ठीक है? Better still, अगर मैं क्योंकि मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा ना हो, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी अगर थोड़ा सा मैं एहतियात करूं, क्योंकि यहाँ पे देखो m is less than n, इसका मतलब क्या है? I would have n minus m is positive, लेकिन positive नहीं काफी, it should be greater than 1, doesn't matter. थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं. इसको मैं बजाय 2 raised power m कॉमन निकालने के, मैं कॉमन निकालूंगा 2 raised power m minus 1. तो अंदर बचेगा 1 by 2 plus 1 by 2 square plus so on and so forth 1 by 2 raised to power n minus m. अब सही है क्योंकि m कैंसिल, 2 raised by n minus 1. अब ये अगर तुम देखो ना ये पावर्स, तो n minus m is a positive power, है ना? Because n is bigger than m by our assumption. अगर मैं तुम्हें कहूंगा, अगर मैं infinitely लूं, what is 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube? What is the limit of this geometric series? मैंने लास्ट टाइम किया था किसी जगह. ये किसके बराबर है? अरे कोई बोलो. Now it's a geometric series with first term 1 by 2. This is 1 because इसका जो sum होगा वो होता है a divided by 1 minus r. It's a geometric series जिसका common ratio है 1 by 2 which is less than 1. Therefore इसका formula होगा 1 by 2 1 minus 1 by 2, that would be 1 by 2 by 1 by 2, that's equal to 1. So पूरी infinite series का sum 1 है. तो अगर मैं अब इतनी ही टर्म्स लूं, मान लो 3 टर्म्स, तो वो लेस देन 1 होगा, है ना? मैं पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर रहा हूं, जब मैं इन्फिनिटी तक ऐड कर रहा हूं तो मुझे 1 आ रहा है. लेकिन अगर मैं सिर्फ 1 by 2 स्क्वायर प्लस सम 1 by 2 क्यूब फाइनाइट तक रुक जाऊं, तो दिस शुड बी लेस देन 1. सो दिस इज लेस देन 1 by 2 raised to power m minus 1, which would converge to 0 as m approaches infinity. किसी भी नंबर अगर वो लेस देन 1 है, उसका पावर अगर बढ़ता जाएगा ना, तो वो बहुत छोटा होता जाएगा. जैसे 1 by 2 है, तो अगर पावर बढ़ाएंगे तो 1 by 4 है, 1 by 8 है, या कोई भी नंबर जो लेस देन 1 हो, तो वो छोटा होता जाएगा जितना उसका पावर बढ़ता जाएगा. सेम अप्लाइज हियर. सो दिस गोज टू 0 एज m अप्रोचेस इंफिनिटी. लेकिन n तो m से बड़ा है, तो अगर m अप्रोचेस इंफिनिटी आल्सो n अप्रोचेस, I can say that ym minus yn converges to 0
as mn approaches infinity, which implies that ये जो yn है या yk है जिसका मैंने नाम दिया था yk, should I take yk? चलो yn लेते हैं, चलो, is a Cauchy sequence in x and x is complete, which implies that yn converges to some y belonging to x, right? Now, अगर मैं अब लूं next step, almost हमारा हो गया है. Now, okay, वही मैंने सोचा था k रखते हैं क्योंकि वहां मैंने k लिया है, but doesn't matter. तो इससे कुछ नहीं होता, ऐसे में लिखता हूँ as जो साथ में लिखते हैं k approaches infinity. ओके, नाउ अगर मैं दूं ये कोसेट वाला चीज तो x n सब k माइन प्लस y माइनस दिस y जो अभी मैंने ढूंढा y प्लस y जो है this, because this is infimum, this is less than equal to any member of this set, any member of this set अगर मैं लूंगा, और इसका एक मेंबर तो मुझे पता है, मैंने y के सीक्वेंसेस ली ही है यहाँ से, और इसका एक मेंबर तो मुझे पता ही है, दैट्स y. इसका एक मेंबर है ना y, क्योंकि इसमें y is a subspace. So this would be less than equal to yk minus y, which goes to 0 as k approaches infinity. It implies that xn sub k plus y converges to y plus y. Of course, this belongs to x by y, because x belongs to x. So hence, xn sub k, सीधे लिखते हैं, therefore x by y is complete. ओके, सो ये हमने पूरा किया कि कोशेंट स्पेस. अब हमने एक और तरीका निकाला नॉर्म डिफाइन करने का. मेरे पास x है, उससे मैंने एक नई नॉर्मल लीनियर स्पेस क्रिएट की, कोशेंट स्पेस, यूजिंग सम क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ y, क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ x. उसको यूज करके मैंने एक और नॉर्मल लीनियर स्पेस जिसका नॉर्म अलग है जो हमने इससे पहले किया था. तो लेकिन मैं चाहूंगा तुम थोड़ा मेहनत करो प्लीज, ठीक है ना. अभी तुम्हें सब सीक्वेंस भी याद नहीं है, क्या होता है बाकी चीजों का तो पता ही नहीं जो हमने पिछले दिनों पढ़ी. तो मैं चाहूंगा कि तुम क्या बोलते हैं इसको, पढ़ो, मतलब रिवाइज करो, वहां जाओ और मेहनत करो और रिपीट करो, रिपीट until you achieve a certain understanding जो इसके लिए जरूरी है समझने के लिए. और दूसरी बात जो हमें इससे पहले इसके बाद करना है, जो मैं थोड़ा शुरू कर सकता हूं इस टाइम, वो ये है कि हाउ अबाउट नाउ आई नो दैट देयर आर नॉर्मल लीनियर स्पेसेस, राइट. मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी, उनमें डिफरेंट किस्म के नॉर्म देखे. नाउ हाउ अबाउट अल्टीमेटली आई वांट टू लुक एट द फंक्शंस बिटवीन नॉर्मल लीनियर स्पेसेस. जैसे लीनियर स्पेसेस अगर होगी नॉर्म के बगैर, है ना, लीनियर स्पेसेस जो होती हैं नॉर्म के बगैर, वहां पे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस होती हैं बिटवीन लीनियर स्पेसेस, बिटवीन वेक्टर स्पेसेस. बताओ मुझे उनको क्या कहते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. सो वहां पे होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि t ऑफ x प्लस y जो है वो होता है t, वो स्ट्रक्चर जो है इसका वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर, उसको प्रिजर्व करती है. अल्फा टाइम्स t. बिल्कुल सही. Now this is true for all xy belonging to x and alpha belonging to the scalar field. ठीक है. Of course x and y are vector spaces over some field k. तो of course ये भी वेक्टर स्पेस है. एवरी नॉर्मल लीनियर स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस, है कि नहीं?
So I can think अगर मैं अब x लेता हूँ a normal linear space, तो y भी लेता हूँ normal linear space over some field k, then I can define linear transformations, है ना? हाँ सर, क्योंकि ये वेक्टर स्पेसेस हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ So I सर, can define mappings such that t of x plus y, ये वाली properties on a normal linear space भी ये define हो सकती है, क्योंकि every normal linear space is a vector space. लेकिन फिर क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर नॉर्म लगाने का फायदा क्या है ना? नॉर्म लगाने से कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना? मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, तो अब मेरे पास x है जो एक लीनियर स्पेस है, y भी एक लीनियर स्पेस है। अब मैंने इस पे साथ में नॉर्म भी लगा दिया, अब ये नॉर्मल लीनियर स्पेस है ना? जब ये लीनियर स्पेस थी तो मैं इस पे डिफाइन कर सकता हूँ एक्स वाई such that t is linear transformation या सिंपली लीनियर मैप हम कहते हैं। तब नॉर्म से क्या मिल सकता है? जब हम नॉर्म से मिलता है हमें मेट्रिक, मेट्रिक से मिलती है टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी किस लिए यूज होती है? टोपोलॉजी जब हम करते हैं उसके लिए जो प्रॉपर्टी है जो अंडर कंसिडरेशन है वो होती है, अगर मैं कहूँ मैं किस चीज को कंसिडर करता हूँ। नाउ सपोज x इज अ नॉर्मल लीनियर स्पेस, y इज अ नॉर्मल लीनियर स्पेस। अब मैं थोड़ा लीनियर भूल जाता हूँ, नॉर्म को पकड़ता हूँ। So it means x and y are topological spaces because they are metric spaces. तो इनमें जो स्पेशल मैपिंग्स होगी, जैसे यहाँ पे स्पेशल मैपिंग्स है बिटवीन वेक्टर स्पेसेस, वो क्या है? लीनियर मैप्स, है ना? अगर मैं सोचूं देम ऑफ दे आर आल्सो टोपोलॉजिकल स्पेसेस, उनके दरमियान जो स्पेशल मैपिंग्स होंगी वो क्या होंगी? कंटिन्यूअस मैप्स। तो जब टोपोलॉजी होगी वहां पे हम कंटिन्यूटी को देखेंगे एज अ स्पेशल प्रॉपर्टी। जब लीनियर स्पेस होगी, वेक्टर स्पेस होगी, तो उस पे जो स्पेशल प्रॉपर्टी है उसकी, या जो जिन स्पेशल मैप्स को हम देखेंगे वो होंगे लीनियर मैप्स। तो यहाँ देखेंगे कंटिन्यूअस मैप्स। अब चूंकि अगर कोई लीनियर भी है और नॉर्म भी है, यानी वो लीनियर स्पेस भी है और टोपोलॉजिकल स्पेस भी है, ठीक है सर ना? ये जरूरी है, अगर कोई हाँ बोलो। फंक्शन होगी फ्रॉम बिटवीन टू टोपोलॉजिकल स्पेस वो हाँ, कंटिन्यूअस होगी, नहीं जरूरी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस भी हो नहीं सकती है। बिल्कुल नहीं है। कोई मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन जो होगी बिटवीन लीनियर स्पेसेस वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ जित मतलब फंक्शंस तो अनकाउंटेबली मेनी डिफाइन हो सकती है बिटवीन टू इनफिनिट सेट्स, है ना? जी तो सर, फंक्शंस की तो कोई हद ही नहीं है। लेकिन फिर है ना, हम चूज करते हैं इंटरेस्टिंग कौन से हैं अंडर अ सर्टेन सिचुएशन, व्हाट आर इंटरेस्टिंग मैप्स। तो बिटवीन वेक्टर स्पेसेस इंटरेस्टिंग मैप्स हैं जो उसके स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करें, जिनको हम कहते हैं लीनियर। हम थोड़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन। मैपिंग्स लेते हैं, हम तो खाली लेते हैं लीनियर जिनका कोई मतलब हो, जिनसे हम कुछ डिड्यूस कर सकें, जिसका मतलब जो इंटरेस्टिंग हो या जो जिनकी कोई यूटिलिटी हो, है ना? इसी तरह से टोपोलॉजिकल स्पेसेस में जो इंटरेस्टिंग मैप्स होते हैं, अगर तुमने टोपोलॉजी पढ़ी होगी, वहां जो फोकस होता है सारा वो होता है कंटिन्यूअस मैप्स। और उससे भी ज्यादा होता है अगर तुम थोड़ा आगे पढ़ोगे होम्योमॉर्फिज्म्स पे। होम्योमॉर्फिज्म होता है जो कंटिन्यूअस है और उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। ठीक है ना? हाँ सर, तो हाँ मतलब यहाँ पे जो फोकस में प्रॉपर्टी होती है टोपोलॉजिकल स्पेसेस में, मैप्स बिटवीन टोपोलॉजिकल स्पेसेस में जो प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन है या जो इंपॉर्टेंट है वो है कंटिन्यूटी। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन है वो है लीनियरिटी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। है ना? अब अगर कोई हाँ चीज x है नॉर्मल लीनियर स्पेस, ये लीनियर स्पेस भी है तो टोपोलॉजिकल स्पेस भी है, तो यहाँ पे कौन से मैप्स होने चाहिए इंटरेस्टिंग जब मैं दोनों को इंटर कंसिडरेशन में, यानी वो वाले लीनियर मैप्स जो कंटिन्यूअस होंगे। जो कंटिन्यूअस भी हो। मतलब इन मैप्स पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि दोनों ही चीजें, इसका एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है, और इसका जो नॉर्म स्ट्रक्चर क्योंकि ये मतलब दोनों ही इंक्लूड हो जाए, दोनों ही स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज को हम अंडरस्टैंड करें। यानी जो अब हमारी मैपिंग्स होगी जिन पर हम फोकस करेंगे, ऐसी लीनियर मैपिंग्स, है ना, जो कंटिन्यूअस भी हो, दैट आर आल्सो कंटिन्यूअस।
ठीक है ना, ये क्लियर हो गया थोड़ा सा? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, यानी दे वुड बी अ सबसेट ऑफ, जैसे तुम्हें पता है ऑल लीनियर मैपिंग्स बिटवीन होम एक्स वाई हम लिखते हैं ना उसको, हाँ this हो is गई। equal to all linear mappings from x to y such that t is linear, ठीक है ना, या लीनियर हाँ ट्रांसफॉर्मेशन। सर। ठीक है, अब इसका एक सबसेट हम देखेंगे, कौन सा? इसका सबसेट क्या होगा कि अब मैं देखूंगा ऐसी मैपिंग्स t from x to y such that t is linear and continuous। क्योंकि ये लीनियर ऑलरेडी है तो इसका सबसेट होगा ना, यहां तो लीनियर होना इसके लिए काफी है, यानी मैं ले रहा हूं ऐसी स्पेशल मैपिंग्स ऑफ जो लीनियर ही नहीं साथ में कंटिन्यूअस भी है, यानी लीनियर तो वो है ही, यानी वो कंटेन होगी फ्रॉम होम एक्स वाई, और इसका एक इसको हम लिखते हैं बी एक्स वाई, यानी ऐसी सभी मैपिंग्स जो लीनियर between two normed linear spaces that are linear as well as continuous. Of course it would be a subset of home xv which are just linear, यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन है। ठीक है, सर उल्टा नहीं होगा? उल्टा क्यों होगा? क्योंकि सर बड़ा सेट है ना ये। नहीं 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 सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर। यहाँ रेस्ट्रिक्शन है ना, हम कह रहे हैं एक तो हाँ सर, लीनियर होना चाहिए और कंटिन्यूअस भी होना तो चाहिए, यानी कंटिन्यूस लीनियर भी तो होना है ही, चाहिए। देखो सर ये लीनियर जो है ये कंटिन्यूअस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर्टी मेन है लीनियर होना, ना कि कंटिन्यूटी। हाँ ठीक सर। है, तो इनको अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो इस स्ट्रक्चर को, जो इसकी लीनियर स्ट्रक्चर और जो नॉर्म स्ट्रक्चर से रिलेटेड फंक्शंस हैं, यानी ऐसी फंक्शंस जो लीनियर भी हैं कंटिन्यूअस, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी होगा। और अगर तुमने अपने नोट्स देख लिए जो मैंने पहले यूनिट्स के पहले 2-3 पेज के बाद ही हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ हमने काफी टाइम लिया यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन मुझे लगता है इसको हम अब कल करेंगे। ठीक है, वर्क हार्ड, ऑल ऑफ यू वर्क हार्ड। तो अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? I've got how many? 18. ओके सर। Okay. ओके सर। Okay, खुदा।